आज Interesting. का Okay. जो है हमारा एपिसोड है वो इट्स अबाउट द माइग्रेशन that happened because of the partition of India and Pakistan. About 16 million people were displaced. It's been the largest mass migration in recorded history. And The other died. 2 million people lost their lives Yeah. due to communal riots, starvation, and all of the chaos that ensued. पंजाब क्या है? पांच आब, पंज Rivers, आब, yeah. राइट? सो पांच नदियों का जहाँ पे वो मिलती हैं, राइट? तो वो कह रहे हैं कि इस पानी में किसी ने जहर मिला दिया, है ना? वो टाइम जो था इतना मुश्किल होगा, लोग जो थे पता नहीं था, फैमिलीज जाती थी एक जगह से बैठती थी और दूसरी Yeah, जगह man. पता नहीं था कि जिंदा पहुंचे। मेरे जो नाना थे उन्होंने अपनी फैमिली को चढ़ाया, मेरे ख्याल से पता नहीं इंडिया में कहीं से चढ़ाया, थे मेरठ में शायद, आगरा की तरफ है, वहाँ से Okay. चढ़ाया और फैमिली को भेज दिया, फैमिली पता नहीं पहुँची नहीं पहुँची। यार क्षितिज, Yes, sir. आज हम नहीं क्या यार क्षितिज, Yes. आज हम बात करने वाले हैं about the greatest love story that never was. Can you Okay. guess what we're talking about today? Interesting. I mean, Heer Ranjha, Romeo, Juliet. That's what Sasi comes to Punnu. mind when we say love story. Yes, Mirza Sahiba, Yeah. Laila Majnू. कितने एग्जाम्पल्स हैं हाँ, दैट नेवर वाज. नहीं आज का थोड़ा हट के, आज Interesting, का okay. जो है हमारा एपिसोड है वो it's about the migration that happened because of the partition of India and Pakistan in Interesting. 1947. Okay. Yeah. I mean, yeah, but how are you considering it a love story? Like, how are you putting that into that bracket? I think it's the greatest love story that never was. It's we are talking about it at a very human level. Okay. It was the same people lived together for hundreds of years, Mm-hmm. who Hundreds, thousands. thousands of years. There you Yeah, go. yeah. And because of some decisions that were made, and we don't get into the politics of it. Yeah. We want to stick to the human side of it. Yeah. About 16 million people were displaced. It's been the largest mass migration in recorded history. 16 million? 60. 16 million. Interesting. Now, I think there were more because I remember like 20 million people almost died there. Really? I thought it was 2 million people that died. Okay, I have my numbers wrong. Sorry, guys. If we have our numbers wrong, please comment and let us know. What Yeah. I have over here is 16 million people were displaced. Approximately 8 million moved from 2 million died. 20 lakhs. Yeah. Okay, makes sense. approximately 8 million moved from India to Pakistan, and 6 million migrated from Pakistan to India. And that We still number have the is 8 bigger plus population. 8 plus 6 is 14. So Yeah. where's the other two? The That other died. 2 million people lost their lives Yeah. due to communal riots, starvation, and all of the chaos that ensued. Mm-hmm. Now, the reason why I say it's a love story that never was, इसमें से जो पोइट्री निकली है, जो शायरी निकली है, that reflects Okay. it. And that's what we will touch on today. Okay. Um, I mean, it reminds me kind of जब तुमने लव स्टोरी और इसको साथ में रखा है, तो it reminds me of अमृता प्रीतम्स अज आँखां वारिस शानू. तो उन्होंने ये पार्टीशन पे ही लिखी थी. अच्छा. वारिस शाह, एज यू नो, उन्होंने हीर रांझा लिखी है. तो अमृता प्रीतम ये नज़्म, ये अपनी पोम को एड्रेस कर रही हैं वारिस शाह को कि तुम हमारे पीर हो, हमारी तुमने इतनी एक लव स्टोरी लिखी थी यहाँ पे, जितना जो ज़मीन में प्यार है वो दिखाया था अपनी उसमें. तो उन्होंने कहा था कि अज आखां वारिस शानू कि तो कब्रां विचों बोल, कब्र में से बोल, अज फिर ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का खोल. राइट. तो वो कह रही हैं कि आज वारिस शाह को मैं बुला रही हूँ और अपने कब्र में से कुछ बोलो, या ये देखो ये क्या हो रहा है, और ये इश्क, किताब इश्क का कोई अगला वर्का, कोई अगला पेज, कोई अगला पलटो, ताकि कुछ
अच्छा कुछ मोहब्बत भरा निकल के आया यहाँ से। जैसे पहले तुमने किया था कि एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखा धीयां रोंदियां तेनू वारिस शाह नू कहन। समझाओ। कि एक रोई सी धी पंजाब दी ते जब बात हो रही है हीर की हो रही है कि हीर ने जब शी लॉस्ट रांझा एंड एवरीथिंग, इट्स स्टोरी अबाउट हीर एंड रांझा एंड दे नेवर कुड get together, right? Like, you know, they were married, but at last they kind of died. Like Heer was, I think Heer was killed by her own, it was honor killing by her own uncle, चाचा कैदो का नाम था। और रांझा couldn't take that he died. Actually डोली में क्या हुआ था कि आई थिंक हीर को एक जहर वाला लड्डू दिया था अच्छा। उसके चाचा ने जाने से पहले, मतलब उसकी डोली जा रही है तो दूसरी तरफ तो जहर वाला लड्डू दिया हीर ने, या तो हीर ने खाया एंड देन बाय द टाइम शी रीच, दे डिडंट रियलाइज इट, बाय द टाइम शी रीच रांझा's विलेज तख्त हजारा, फ्रॉम झंगसेयाल टू तख्त हजारा भी सुनना है किसी गानों में भी। या वो रांझे का ही रेफरेंस होता है वो यूजुअली, तख्त हजारा, और वहाँ से आपकी झंगसेयाल जो जंग भी है जो वहाँ पे है, वहाँ पे हीर थी, झंगसेयाल से हीर थी और तख्त हजारा से रांझा था। तो जब लड्डू दिया तो वहाँ पहुँचे, शी डाइड एंड एवरीथिंग, बट थ्रू आउट द टाइम शी वॉज क्राइंग फॉर हर लवर, राइट। लेकिन उसको कह रहे एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, भाई तूने इतने चैप्टर्स लिख दिए कि एक बच्ची धी जो लड़की होता है बेटी पंजाब की रोई थी, तो तूने इतने चैप्टर्स लिख दिए, आज कितनी लड़कियां कितनी बेटियां रो रही हैं, अब लिखो कुछ, राइट। उठ दर्द मंदा दिया दर्दिया उठ तक अपना पंजाब, अज वेले लाशां विछियां ते अज लहू दी भरी चनाब। तो वो कह रहे हैं कि उठ दर्द मंदा दिया दर्दिया उठ तक अपना पंजाब, अपने पंजाब को देख उसका हाल क्या हुआ हुआ है, कितना दर्द फैला हुआ है। आज वेले लाशां, हर जगह लाशें बिछी हुई हैं, और जो चनाब रिवर है वो खून से भरी हुई है, राइट। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਧਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ पानी ला। अब ये पॉलिटिक्स पे बात हो रही है, राइट, कि किसी ने जहर मिला दिया है इस पंजाब क्या है, पांच आब, पंज आब, राइट। सो 5 नदियों का जहाँ पे वो मिलती हैं, राइट। तो वो कह रहे हैं कि इस पानी में किसी ने जहर मिला दिया और इतनी मेरी ये जो धरती जो अर्थ है यहाँ, और जो सोयल है यहाँ की, वो इतनी फर्टाइल है कि वो भी जो नफरत का जहर भी है वो भी उग रहा है इतनी, राइट, कि उसमें लैंड फर्टाइल है, लैंड इतनी फर्टाइल है, जो बोओगे वो उग जाएगा और तेजी से होगा। तो ये अगली उसमें देखो आ रहा है कि किसी ने पंजा पानियां विच दिता जहर रला ते ओना पानियां तरत नू दिता पानी ला, इस जरखेज जमीन दे लूलू फुटिया जहर। हर जगह से जरखेज जमीन है तो जहर फुट, मतलब फूलों की तरह जैसे, और क्रॉप की तरह फुटिया जहर, गिट गिट चढ़ियाँ लालियाँ फुट फुट चढ़िया कैर। भाई आपकी ये लालियाँ मतलब गिट गिट चढ़िया कैर, मतलब मुझे जो समझ आया कि आपके मतलब लहू की जो नदी बह रही है वो सब है, तो उसका भी वो चढ़ता जा रहा है, और ब्लड कैर फैला हुआ हर जगह, राइट। बट आई लाइक द लास्ट वन वेयर इट सेज आज सब्बे कैदो बन गए, कैदो जो हीर के चाचा थे, तो आज सारे कैदो बन गए, राइट। एवरीवन इज ऑलमोस्ट, एवरीवन लुक्स evil at this point. No one wants to solve anything or deal it in a better way. Everyone just want to kill, right. आज सब्बे कैदो बन गए, हुस्न इश्क दे चोर, आज कित्थों लियाइए लब के वारिस शाह एक और। सारे तो कैदो बन गया, वारिस शाह कहाँ से लाऊं मैं, जो प्यार जो मोहब्बत की बात करके गया। Yeah. So I think love story that never was. That's what it reminded me of, right? Yeah. So that was and मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगता है, मुझे लगता है कि एक लोग थे, उनको अलग कर, मतलब स्पेशली लाइक आई मीन आप देखोगे तो मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया से ज़्यादा हुआ है, और ईस्टर्न इंडिया जो आई मीन जो ईस्ट पाकिस्तानी बना बांग्लादेश विच इज़ नाउ, राइट, तो वहाँ ज़्यादा हुआ। और ये नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो आप पंजाब स्पेसिफिकली, एंड देन आपका यूपी हरियाणा, ये तो एक्चुअली हरियाणा भी पंजाब ही था ऑलमोस्ट सारा, तो यूपी और ये नॉर्दर्न इंडिया के जितने एरियाज हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट
हाँ तो इफेक्ट आया नॉर्दर्न है. इंडिया क्योंकि हमारी फैमिली जो थी वो नॉर्दर्न इंडिया से I think थी your शायद, family is from Meerut, right? मेरठ से. Yeah. तो मेरठ से थी वो, मेरठ से वो लोग आए पहले, सियालकोट आए, Okay. सियालकोट से फिर फैमिलीज अलग होके रावलपिंडी में गई और कराची में आई. Okay. But So would you be? I mean, as far as like what you would be considered muhajir? Like, or sorry, your family would be considered a muhajir. yeah, we're Muhajir. Yeah. We're like actually 2-time Muhajir, 2x. Oh, because you came अभी here. आए ना. So what does that muhajir loves like? उसके अंदर क्या कोई negative मेरे connotation ख्याल है या नहीं, कुछ? I Yeah. don't think negative connotation है. मुहाजिर मतलब हिजरत करने वाला, हिजरत करने वाला जो मतलब हिजरत जो माइग्रेट कर migrate कर गया. हाँ. Okay. I So don't know so if it- essentially people will be called muhajir because वो हिजर. तुम मुहाजिर हो. Yeah, I mean, I immigrated here. Yes, of course. Yeah, there you go. Muhajir. There you go. So I just wanted to understand because I have seen Muhajir- people talking about it and addressing, like, you know, obviously people who have moved चले जैसे पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि उसमें मुहाजिर नामा भी तो था ना, आई थिंक मुनव्वर राना का का लिखा हुआ है. मैंने थोड़ा सा सुना है, मुझे बहुत सुनाओ. उसकी स्टार्ट नहीं, मुझे मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, अच्छा. लेकिन क्या कहते हैं उसकी मैंने स्टार्ट वीडियो देखी थी. Okay. और उसमें जो स्टार्टिंग लाइन थी, क्या स्टार्टिंग लाइन थी Yeah. पता नहीं. आई थिंक तुम्हारे We should do a whole episode on that और one मुहाजिर because नामा? yeah, मुहाजिर तुम नामा थोड़ा पढ़ कि जितना थोड़ा सा हम पढ़ो. I don't think I have it with me right now, but if you want to pull it up, but I think it जितना है, जितना तुम्हारे पास है नहीं उतना हम जितना तुम्हारे पास है उतना छोड़ आए हैं. I think ऐसा है ना, right? That's how it starts. I don't remember it. मैं निकालता हूँ अभी, मैं निकालता हूँ. But to be honest, I think we should do a whole episode on that one, like मुहाजिर नामा just, right? You know? I think we should. Yeah. should. क्या कहते हैं, And I think- बीइंग अच्छा, मुहाजिर नामा की जो मुझे जो अच्छी बात लगी थी ना, वो ये एक तो ये थी कि मुनव्वर राना ने खुद हिजरत नहीं की थी, बट ही फेल्ट द पेन ऑफ of a friend in Exact- Pakistan. एग्जैक्टली Yeah. उनसे बात करके उन्हें लगा कि उन्होंने उसके पर्सपेक्टिव से बिल्कुल लिखी थी. बिल्कुल. Yeah, और yeah. काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो लिखा. और दूसरी बात ये कि यू डोंट हैव टू बी प्रेजेंट इन दैट टाइम टू फील दैट, बिकॉज जैसे अगर हमने भी, जैसे मैंने भी माइग्रेट किया है, तुमने भी माइग्रेट किया, जब आप वो भी सुनोगे, यू नो लॉट ऑफ आवर लिसनर्स टू, व्हेन यू लिसन टू दैट, Yeah. यू गो थ्रू योर ओन जर्नी टू, क्या आपने जब माइग्रेट किया है ना. Yeah. जैसे वो जो पहली लाइन बोल रहे हो, निकालता हूँ. But while you're looking for it, you migrated young, right? Like, how old were you when you migrated here? I migrated when I was 18. Oh, that's not young. Yeah, I mean, you that's have pretty like young, a. dude. No, I mean, but you had like a like 18 years of life in Pakistan, right? Yeah, Like, you yeah. know, so, At this like- point, I have lived more of my life in Pakistan than I've lived over here. Oh, okay. Well, of course. Yeah. So, So he's definitely not 36. I'm not 36. There you go. Now we know that he's definitely not 36. I'm 26. Yeah, sure. Yeah, ये मुहाजिर नामा कहाँ से निकालूं? But you know, like it also reminds me. तुमने वो movie देखी थी जब I think I was really young. Pinjar. नाम सुना है. Dude, I love that. उसमें पार्टीशन की मतलब वो पूरी जर्नी दिखाई गई थी उसमें. तो उसमें एक गाना था, मुझे बहुत प्यारा लगता था, जो इसी पे पार्टीशन पे ही था. वतना वे ओ मेरे वतना वे. अच्छा. मतलब वो बात कर रहा है कि वतना वे ओ मेरे या वतना वे, बट गए तेरे आंगन, बुझ गए चूल्हे सांझे, लुट गई तेरी हीरे, मर गए तेरे रांझे. वतना वे ओ मेरे या वतना वे. वाह. मुझे बहुत प्यारा लगता था. उसमें और भी है कि कुछ कौन तुझे पानी पूछेगा, फसलें सींचेगा, कौन तेरी माटी में ठंडी छाँव बीजेगा. ठंडी छाँव मतलब पेड़ कौन लगाएगा. बैरी काट के ले गए तेरी यहाँ ठंडियाँ छावा वे, वतना वे ओ मेरे यहाँ वतना वे. मुझे बहुत प्यारा लगता था और मैं उसको to be honest sometimes I still listen to it, like just driving around and I just like play it. I don't know, like sometimes आपने कुछ गाने सुने होते हैं जो आपके बस दिमाग में बैठे होते हैं, right? And it has the almost the same impact because हम उस टाइम भी मेरे दादाजी थे, दादा नानी सब वहीं से आए थे. तो they would tell us stories and stuff, right? So you could see that, like उन्होंने पिंजर भी देखी थी उनके साथ बैठ के और वो सब, तो they could like kind of relate. And it was a traumatic like, you know, incident for them, so it was just Did they also Yeah. cross? yeah. वो लोग कहाँ से आए थे? I think my like
my dad's side grandparents, they are from Sargodha. अच्छा. I think Sargodha So they side. crossed over in the partition? Yes. अच्छा. Yeah. तो तुम्हें कुछ कोई स्टोरी पता है, कोई हिस्ट्री पता है, कैसे कैसे किया, ट्रेन से गए, पैदल गए, कहाँ I mean, गए? yeah, it was all of like because it wasn't like one की ट्रेन चली और आ गए, right? क्योंकि उन्होंने जब हमें स्टोरीज बताते थे कि इत्थों है, इत्थे गए, उत्थे पैदल चलना पे, इत्थे जाके ट्रेन मिली सी कि उत्थे बस मिली सी कि हो गया. But oh, they would tell us stories and stuff. Why? Because it was I think even like one time I think my mom's side like दूर के किसी रिश्तेदार में I think one of the aunts or something they forget they didn't forget, they just left something behind, like some Like like what? sona or something, I don't know. Okay. Right, so one of like aunt, she went back from half the journey. She was not even in Oh, India wow. yet. She went back. And this is what I've heard, you know, like I'm not sure like how she was related to us, but she got popular because like, you know, She like went who back. goes back, right? Like, you know. Yeah. So Well, if you think about it, it's, yeah, if you're trying to think about it, okay, she went back, that's a big deal. But for her, she's probably going back to her home. yeah, Right? she did. No, but I think what happened was she actually went back. She changed her name and everything, and then she worked her way back to the border within like next 3-4 months or so. Oh, wow. By working in people's houses or something, Acha. like just like changing her name, changing cities and everything, and slowly she moved closer and undercover. closer and closer to the border, and then she just like hopped over one day or so, like, you know, Yeah. hopped fence one day. So I'm just like, Yeah. that takes guts, bro. Like, you know, I know. वो टाइम जो था इतना मुश्किल होगा, लोग जो थे पता नहीं था, फैमिलीज जाती थी एक जगह से बैठती थी और दूसरी Yeah, जगह bro. पता नहीं था कि जिंदा पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे. मेरे जो नाना थे उन्होंने अपनी फैमिली को चढ़ाया, मेरे ख्याल से पता नहीं इंडिया में कहीं से चढ़ाया, थे मेरठ में शायद, आगरा की तरफ गए, वहाँ से चढ़ाया, और फैमिली को भेज दिया. फैमिली पता नहीं पहुंची, वहाँ फ़ोन थोड़ी था उस Yeah, समय yeah, में of कि आप course, फ़ोन yeah. करके पूछ लो कि Yeah. क्या पहुंच गए, कैसा रहा सफ़र. तो वो लोग फैमिली पहुंची, सियालकोट पहुंची, वो किसी के वहाँ पे घर में रह रहे हैं. अच्छा 3 महीने गुजर गए. He didn't know. He has no idea. Like, He has no what's he- idea. Yeah. He comes 3 months later and he goes to a different city. He goes to Rawalpindi. Yeah. और वहाँ से पता करते हुए कि कहाँ गए, कैसे ढूंढा होगा, राइट, कि सियालकोट में किसी कहीं गए, वहाँ पे पूछा कि यू नो ऐसे ऐसे फैमिली है. मेरे ख्याल से उस ज़माने में क्योंकि इतनी बड़ी मास माइग्रेशन होती, लोगों के सिस्टम्स बन गए होंगे कि अच्छा ऐसे पता Yeah, चला like है. who is like, हाँ, or at least hubs maybe, होंगे. yeah, maybe even like, you know, that mostly जो आए थे वो वहीं पे हैं. Yeah. Mostly जो like जैसे यूपी से आए थे वो इकट्ठे यहाँ रह रहे हैं हाँ, सब. Kind of like, yeah. कुछ हुआ Yeah, होगा yeah. सिस्टम. लेकिन मैं आई कैंट इमेजिन कि फैमिली को भेज दिया और 3 महीने बाद पहुंच के देख रहे हैं कि जिंदा भी हैं कि नहीं. जिंदा right, भी है like, कि yeah. नहीं, पहुंचे भी है. Dude, और like- क्या मजा आया होगा जब देखा होगा कि Yeah. और No, लेकिन but- कितने लोगों को But think about नहीं this, मिला like, होगा ना. like think about this. From like take a like, you know, from like a more of a human or like, you know, let's just say even artist standpoint, like, you know, I think that's where poetry is. I think that's where in that longing. Yeah. You don't know, right? तो वो वहाँ से जो एक चीख निकलती है ना अंदर से कि आपको पता नहीं है, but there's nothing you can do about it. Yeah. All you can do is overthink and express yourself in words or whatever, right? And I think that's where poetry comes from. मुझे एक वो शेर कौन सा वो था, I think वो कथा है कि एक ऐसा वक्त भी आता है चांदनी शब में, एक ऐसा वक्त भी आता है चांदनी शब में, मेरा दिल मेरा दिमाग कहीं नहीं होता, तेरा ख्याल कुछ ऐसा निखर के आता है, तेरा विसाल भी इतना हंसी नहीं होता. कहने का मतलब ये है कि एक रात में एक ऐसा टाइम भी आता है कि मेरा दिल दिमाग कहीं नहीं है, तेरा जो ख्याल है वो तेरे विसाल से भी ज्यादा निखर के आता है. विसाल मतलब तेरे तुझसे जब मैं मिलता हूँ उससे भी बड़ा ख्याल तेरा निकल के आता है. वाह. So that's what it tells you, right? The poetry is actually in the longing. Like, you know, when you don't know, when you can't meet them, when you have to like, you know, रांझे को जब हीर से मिलने के लिए जब उसकी शादी हो गई तो उसने जब चोला पहन लिया अपना वो कहते हैं ना, रांझा जोगी हो गया था रांझा,
तो वो लॉन्गिंग के अंदर कि उसकी शादी हो गई है, अब मैं क्या करूं, आई विल 12 साल तक उसने उसकी मज्जियाँ चराई, जो भैंसें चराई थी जो गवाला बन के, और उसके बाद रांझा वो भी हो गया, मतलब जोगी बन गया, दर दर भटक रहा था वगैरह। तो वो लॉन्गिंग के अंदर, या राइट। उसके अंदर मुझे एक गाना भी याद आ रहा है, सॉरी, एक वो हुस्ना? था, नहीं हुस्ना नहीं, अच्छा, अच्छा वो, लेकिन हुस्ना भी बड़ा अच्छा गाना है, हुस्ना भी लॉन्गिंग के बारे में? यस, ओके। हुस्ना भी लॉन्गिंग, बट आप बताओ कौन सा? नहीं नहीं, मुझे वो रांझे का एक याद आया था कि रांझा अपने उसमें था, गोरखनाथ एक बाबा थे, उनका चेला था। रांझा जब जोगी हुआ था तो उनसे सीखता था कि भाई जोगी, हाउ टू बी ए जोगी एज वेल, राइट। तो वो कहता था, तेरे टिल्ले तो या सूरत दी दिया हीर दी, आला वेख गोरखा उड़ दिया फुलकारी। भाई तेरे टिल्ले पे खड़े होके मुझे हीर की सूरत दिख रही है, आला वेख गोरखा, अपने उसको कह रहे हैं कि वेख वो फुलकारी, मतलब उसकी चुन्नी उड़ रही है, जो भी है। तो वो बहुत अच्छा गाना है, वी शुड कवर दैट वन डे एज वेल। बट Husna is more about longing. Husna is about longing, and it's also about, again, bringing it back to the partition. Yeah. It's basically, the way I understand it, it's a love letter from one side of the border to the other side of the border. Okay. And उसमें वो जो है वो basically, again, मुझे इसलिए अच्छा लगता है because वो जो है वो human connection पे बात कर रहा है। मतलब वो basically कह रहा है कि उसमें जो उसने लिखा है वो, और गाना भी बड़ा अच्छा है, एंड इट ऑल्सो रॉक्स आउट एट द एंड। Okay. लेकिन मैं पढ़ के सुनाता हूँ थोड़ा सा। लाहौर के उस पहले ज़िले के 2 परगना में पहुँचे, रेशम गली के दूजे कूचे के चौथे मकाम में पहुँचे। वाह। मतलब वो एक Yeah. विजुअल दे रहा है कि चलते Yeah. हुए जा रहा, मतलब जो लाहौर से है उसे तो पता है ना कि वो एड्रेस कहाँ है, वो कैसे है, तो उसके दिमाग में पिक्चर चल रही वो है। ढूंढ रहा है, राइट। वो हमें लेके जा रहा है अपने साथ, और वो ढूंढ रहा है, और ये मतलब एक जो लॉन्गिंग की बात कर रहे हो, ये उसमें हमें लेके जा रहा है। और कहते हैं जिसको दूसरा मुल्क उस पाकिस्तान में पहुँचे, लिखता हूँ ख़त में हिंदुस्तान से पहलुए हुस्ना में पहुँचे। वाह। मैं तो हूँ बैठा, ओ हुस्ना मेरी यादों पुरानी में खोया, पल पल को गिनता पल पल को चुनता, बीती कहानी में खोया। हाँ। पत्ते जब झड़ते हैं हिंदुस्तान में, यादें तुम्हारी ये बोले, होता उजाला हिंदुस्तान में, बातें तुम्हारी ये बोले। बहुत अच्छी, वो क्या बात, लॉन्गिंग में, लॉन्गिंग में है। ओ हुस्ना मेरी ये तो बता दो, होता है ऐसा हुस्ना क्या उस मेरी गुलिस्तान में। ये तो बता दो, आई रिमेम्बर दैट सॉन्ग। हाँ, ये गा लिया। पीयूष मिश्रा ने गाया था ना, Yeah. या पीयूष मिश्रा डिड दैट वन। या मेरी ये तो बता दो, होता है ऐसा क्या उस गुलिस्तान में, रहती हो नन्ही कबूतर सी गुम तुम जहाँ। मेरे ख्याल से ये जो है, अगेन ये ह्यूमन कनेक्शन को इस तरह जोड़ रहा है कि बेसिकली नेचर को उसमें ला रहा है, राइट। दैट क्या हुआ कि इतना बड़ा पॉलिटिकल डिवाइड आया, क्या हुआ कि ये बॉर्डर आया है, लाइक नेचर तो वही है ना, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। माई लॉन्गिंग फॉर यू इज व्हाट ही इज इलिस्ट्रेटिंग थ्रू दैट। पत्ते क्या झड़ते हैं पाकिस्तान में वैसे, जैसे झड़ते यहाँ ओ हुस्ना, होता उजाला क्या वैसे ही है जैसे होता हिंदुस्तान में ओ हुस्ना में। वाह, क्या बात है। मतलब तो अच्छा, पता है इससे मुझे याद आ रही है, एक निदा फाजली की गज़ल थी, जिसमें उन्होंने, मतलब इसमें इसी को थोड़ा, आपने अभी नेचर की बात की है इन द सेंस कि वो कह रहे हैं कि वहाँ भी ऐसे झड़ते हैं, यहाँ भी, मतलब वो पॉजिटिव एंगल दिखा रहा है। अच्छा, अभी नेगेटिव एंगल भी दिखाता हूँ उसी का, सेम कंपैरिजन, राइट। कि इंसान में हैवान यहाँ भी है वहाँ भी, राइट। इंसान में हैवान यहाँ भी है वहाँ भी, अल्लाह निगाहबान यहाँ भी है वहाँ भी, राइट। ये तो उसका भी ऑपोजिट हो गया। या तो वो अपने उसको करा ना, या कि खूंखार दरिंदे के फ़कत नाम अलग हैं, हर शहर बयाबान यहाँ भी है वहाँ भी, राइट। और ये वाला सुनना कि हिंदू भी सुकून से है, मुसलमान भी सुकून से है, हिंदू भी सुकून से है, मुसलमान भी सुकून से, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी, राइट। क्योंकि अब आप देखो ना, अब इसको इसमें उस एंगल से भी ले सकते हो कि मुस्लिम लीग को मिल गया जो वो चाहते थे, राइट। इन दैट सेंस अगर पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो उसको, तो मुस्लिम लीग को मिल गया, वो चाहते थे कि पाकिस्तान बने और ये बने, कंप्लीट उसमें नहीं, लेकिन लेकिन इंसान जो परेशान हुआ, जो इतनी माइग्रेशन हुई, ये सब हुआ, वो तो इंसानों को ही देखना पड़ा ना। उस टाइम उनका धर्म थोड़ी वहाँ पे वो काम आ रहा था,
किसी भी चीज़ में, राइट? Yeah. तो रहमान की रहमत हो कि भगवान की मूरत, हर खेल का मैदान यहाँ भी है वहाँ भी। और ये वाला सबसे मुझे अच्छा लगता है कि उठता है दिलो जाँ से धुआं दोनों तरफ ही, उठता है दिलो जाँ से धुआं दोनों तरफ ही, ये मीर का दीवान यहाँ भी है वहाँ भी। मीर तक ही मीर की बात हो रही है, क्योंकि ये जब उन्होंने कहा है ना कि उठता है दिलो जाँ से धुआं दोनों तरफ ही, अब ये एक्चुअली मीर का दीवान है कि देख तो दिल के जाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। ये मीर की गजल है, राइट? और तो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारी शेयर्ड लिटरेचर है, ये जो हमारी शेयर्ड विरासत है, उसका क्या? ये जो मीर, ये गालिब, ये बड़े बड़े शायर जो हमारे यहाँ हुए हैं, बड़े बड़े मतलब आपके मतलब सिंगर्स, कितनी विरासत है हमारी साथ में, लाइक लिटरेचर कितनी लिखी गई है, उसका क्या, राइट? वो भी तो दोनों खाना पीना, कल्चर, लाइक इट्स लाइक that's why I say it's a love story. Yeah. It's more of a heartbreak. it is, yeah. और कितने लोगों के दिल टूटे, कितने लोगों के घर टूटे, कितने लोगों की जाने गई। घर, वो एक्चुअली मूवी भी आई थी ना, लाहौरी है, No, I haven't आई seen थिंक पंजाबी मूवी है, अमरिंदर गिल। और तो एट लास्ट आई थिंक उस मूवी के अंदर मतलब इट एक्चुअली इज अ लव स्टोरी एंड एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम देयर इज एन एंगल ऑफ लाइक द पार्टीशन एंड हाउ this, like, I think they were like two kids, spoiler alert, they were like two kids, and it was just like they were migrating, but they used to live in the same town, but one was Muslim and one was Sikh or something. And he said that please take care of my house while I'm gone, because they thought they were going to come back, right? So he said please take care of my house. And now what's happening is the kids and the grandkids or something, they want to rebuild the house, they want to, like, but the grandfather is like, nope, it's my friend's house, I'm not going to let you break How it. sweet. And they're like that old, and at some point they get a chance to go there and, like, kind of see their house and everything. So it was just like a really nice story, and that's how the family comes together as well. Yeah, no, that is a great story. I hope someday to go visit where my grandparents were from. Yeah, I mean, Meerut, I don't know if it's the same as it used to be, like border wise. I don't know how, if it has, like, the borders have moved for the city or not, like has moved or not. Maybe, I don't know. I mean, because, like, I'm from Haryana originally, तुम Delhi. Meerut गए? Oh yeah, you pass by all the time. I think we must probably have like someone, like some relatives or something there as well. It's very close to Delhi. It's not that far. Got it. Especially now, the infrastructure is really good. So yeah. Oh, actually, एक tangent में लेना चाहूँगा यहाँ से। बिल्कुल। एक जो उसमें था कि जो मीर का, जो मैंने अभी पढ़ी थी गज़ल, उसमें था कि देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। उसमें एक और शेर था, और मुझे ये एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है जब ये शायर होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। अब जैसे निदा फाजली ने लिखा कि उठता है दिलो जहाँ से धुआं दोनों तरफ ही, राइट? तो ये मीर को एड्रेस कर रहे हैं ना, मीर तक ही मीर को। तो इसी गज़ल के अंदर एक और शेर है जिसको निदा फाजली ने दोबारा एड्रेस किया किसी और गज़ल में, कि इन्होंने, ये तुमने सुना भी होगा कि इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये तुझ ना तवा से उठता है। ये बहुत पॉपुलर है कि इश्क एक बहुत भारी पत्थर है, ना तवा होता है पावरलेस, और लाइक तवा मतलब एनर्जी, या पावर, लाइक ऑलमोस्ट, राइट? तो वो पावरलेस आप स्टेट के अंदर होते हो, तो वो कह रहे हैं कि कब ये तुझ ना तवा से उठता है। तो अब निदा फाजली ने इसका जवाब दिया कि हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन। मुत्तफिक मतलब कि उनके साथ अलाइन होना या अग्रीमेंट करना है। तो हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, उठाना है जो पत्थर इश्क का तो हल्का भारी क्या, राइट? तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जब पोएट्स आपस में like they're like 200 years apart, right? 200 years apart from each other, but they're like talking to each other, like, so I enjoy that conversation. That आप अपने बुजुर्गों से बात कर रहे हो almost, right? एक डायलॉग बना लिया जहाँ पे डायलॉग था नहीं। Yeah. So I enjoy it, so that's why I wanted to take a little tangent. Yeah. So bringing it back to the partition, and maybe this is a good place to end. ये मुनव्वर राना के मुहाजिरनामा पे जो इसके जो famous वो हैं अशार हैं, and maybe someday we will do a full episode on this one because I think we can talk about it in in a lot of detail. तो तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं।
कि क्या एक ही कितनी लाइन में कितना power- बोल दिया। क्या मतलब अच्छा, crazy बात है। इसमें एक कॉमेडियन था, वो कहता था कि हमारे माँ बाप ने सबने हमें यही कहा है कि हमारे पास इतना सोना होता था, हमारे पास इतना पैसा ये होता था, कह रहे तुम सोना सारा छोड़े, कटोरियाँ सारी ले आए। सारी। सही बात है। मुझे ये लाइन बड़ी पसंद है। Okay. तुम्हारे पास इतनी छोटी सी एक लाइन में इतना कुछ कह Yeah. दिया। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं, नई दुनिया बसा लेने की एक कमज़ोर चाहत में, पुराने घर की दहलीज़ों को सोना छोड़ आए हैं। सूना छोड़ा। छोड़ आए हैं। पुराने घर की दहलीजों को सूना दहलीज़ें छोड़ा क्या है। हुआ? दरवाजे, दहलीज जो होती है आपकी, yeah. मतलब स्टेप इन एसेंशियली, एंट्रेंस। या आई गेस दरवाजे, दहलीज, या से- फिर से पढ़ देता हूँ पूरा, ताकि अंदाज में पढ़ो। अंदाज में नहीं पढ़ना आता, तो अंदाज में तुम पढ़ो। ओके, नहीं, बट इट्स योर जर्नी। It's our journey. Is that where it starts? तुम्हारे पास जितना है उतना छोड़ आए हैं, नई दुनिया बसा लेने, नहीं, आई थिंक, होल्ड ऑन, लेट मी फाइंड अ गुड वन। दक्ष काट देगा इसको। कर लियो भाई दक्ष, जो करना है इसका। there you go. Yeah, there you go. See, मुहाजिर है मगर एक दुनिया छोड़ आए हैं। मुहाजिर है मगर एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। वाह, that's crazy. हंसी आती है अपनी अदाकारी पे खुद हमको, हंसी आती है अपनी अदाकारी पे खुद हमको, कि बने फिरते हैं यूसुफ और जुलेखा छोड़ आए हैं। आई थिंक इट्स ए कल्चरल रेफरेंस। जो एक पतली सड़क उन्नाव से मोहान जाती थी, ये इंडिया के अंदर कोई वो है, किसी या सिटी फ्रॉम वन, तो है कि जो एक पतली सड़क उन्नाव से मोहान जाती थी, वहीं हसरत के ख्वाबों को भटकता छोड़ आए हैं। राइट, वज़ू करने को जब भी बैठते हैं याद आता है। वज़ू करते हैं ना आप, इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर नमाज पढ़ने से पहले आप जो क्लेanलीनेस का जो रूटीन है, राइट, बेसिकली आप नमाज पढ़ने से पहले अपने आप को क्लेंस करते हैं। या तो वज़ू करने को जब भी बैठते हैं याद आता है कि हम उजलत में जमुना का किनारा छोड़ आए हैं। पहले वहाँ जमुना के किनारे पे बैठ के वज़ू करते होंगे। उतार आए मुरव्वत, एसेंशियली दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली के अंदर यमुना बहती है और वो सब है, तो आई एम अस्यूमिंग वहाँ पे आपकी वो भी है, जामा मस्जिद भी है बड़ी, तो और काफ़ी और भी वो है, तो इन्फ्लुएंस बहुत है मतलब उसमें, राइट। तो वहाँ कह रहे होंगे कि जमुना के किनारे हम बैठ के करते थे, राइट। उतार आए मुरव्वत और रवादारी का हर चोला, उतार आए मुरव्वत और रवादारी का हर चोला, जो एक साधु ने पहनाई थी माला छोड़ आए हैं। माला पहनाई जाती है ना। ख्याल आता है अक्सर धूप में बाहर निकलते ही, ख्याल आता है अक्सर धूप में बाहर निकलते ही, हम अपने गांव में पीपल का साया छोड़ आए हैं, राइट। तो ये आई मीन इट इज लाइक, आई थिंक वी शुड डू अ होल एपिसोड ऑन दिस। मुझे आई लव इट, बट आई डोंट थिंक इट कैन बी कवर्ड like, the end of the episode. I don't think we can do do it like, justice to it. I think आज के एपिसोड का मकसद यही था कि we pick from different pieces from different poets, Yeah. try to convey the human suffering, Yeah. the human connection that was because of the partition. Yeah. But yeah, that was during the partition, and this is like, after the partition, when you have settled in and now you think कि क्या क्या छोड़ा है हम, अब आप बैठ के हिसाब कर रहे हो, right? Aftermath है ना partition की, because of the partition. So like, yeah, let's do a next episode of this one, or like, Let's do it. Cool. Well, thank you guys. Let us know if you enjoyed the episode in the comments. If we got anything wrong, please let us know in the comment. We always do. Somehow we manage. And how do you like the new set? It's the first time we're introducing the new set as well. So please let us know in the comments. Thank you. Thank you.